और जी बेटे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू गिवन आपके पास 1/8, फाइंड नॉट ए एंड नॉट बी। बिफोर टेकिंग दिस आई एम राइटिंग हियर वन नोट, उसके बाद क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। नोट में आपको ये दे रही हूँ, नॉट ए का मतलब क्या होता है बेटे, दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, और एंड आर अदरवाइज इंटरसेक्शन आर अदरवाइज डॉट मल्टीप्लिकेशन वन एंड द सेम थिंग, अदरवाइज और अदरवाइज यूनियन अदरवाइज प्लस, ये सब का मतलब एक ही होता है। सो नॉट ए का मतलब ये कॉम्प्लीमेंट, एंड आर इंटरसेक्शन डॉट मतलब वही मीनिंग है, यूनियन का मतलब और लिख सकते हैं और अदरवाइज प्लस भी लिख सकते हैं। ओके फाइन। नाउ अब आ जाओ इसी क्वेश्चन में पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। दे आर आस्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। सो और ए एंड बी आर माइंडेड, यहाँ पे क्या गिवन है बेटे, ए एंड बी आर एनी टू इवन्स, कोई इंडिपेंडेंट वो कुछ भी नहीं दिया। सो नॉट ए एंड नॉट बी, इसका पैरेलल मीनिंग आपको बता रखी हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पैरेलल मीनिंग नाइदर ए नॉर बी बताया। कैन यू से बेटे फॉर्मूला, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनेगा बेटे? 1 minus p probability of A and B. Well done बेटे, well done. 1 minus probability of A union B, because in case if they say A and B are independent, then P A complement into B B complement हो जाता है, intersection into में चला जाता है if they say independent, but यहाँ पे any two events, then P A complement intersection B complement equal to 1 minus the probability of A union B, that is equal to 1 minus, you know the formula A union B का, A union B का formula क्या है बेटे? Probability of A union B equal to Probability of A and probability of B makes probability of A. well done. Probability of A intersection B. Now that is equal to 1 minus the probability of A given 1/4 plus 1/2 minus 1/8. Now you have to simplify, that's equal to 1 minus क्या आएगा, LCM 8 ले लेना, LCM 8 आ जाएगा, so ये हो जाएगा 2 plus 4 minus 1, so that is equal to 6, 1 minus 5/8, that is equal to 3/8 आ जाएगा। Now और कोई पार्ट नहीं है, so क्वेश्चन नंबर 9 I have done, बात को समझना है आपने। Now next आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी 11। Now next क्वेश्चन भी तो है, 10th क्वेश्चन भी है ना, A and B are any two events such that P A given है बेटे, that is equal to 1/2, probability of B given है, so that is equal to 7/12, probability of A intersection A not A और not B, और का मतलब मैंने बताया यूनियन, that is equal to क्या given है आपका 1/4। They are asking state A and B are independent, बेटे if A and B are independent then what you know, if A and B are independent, हर बच्चे आंसर दे सकते हैं बेटे प्लीज, if A and B are independent then बोलो बेटे, if A and B are independent then Probability of A intersection B is equal to probability of A into probability. well done. Probability of A intersection B equal to probability of B LHS equal to RHS होना चाहिए। अब मुझे ये नहीं हो P A given है, P B given है, but P A intersection B given नहीं है, तेरे पास ये दे रखा है, so how can you find P A intersection B? What is the formula P A complement union B complement? Can you say? Minus probability of A. बोलो 1 minus probability of A intersection B है बेटे, A intersection B, so A intersection B हमें जरूरत है, तो probability of A intersection B equal to ये उधर जाएगा 1 minus 1/4, that is equal to 3/4। so अब हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, probability of A intersection B equal to क्या होना चाहिए, PA into PB, ये भी कंडीशन मैंने बताया, so this implies PA intersection B we have 3/4, that is equal to probability of A 1/2 into 7/12, of course not equal, so this implies here we are not independent,
A and B are not independent. Like this we can do it bete. Next one, see another question. Question number, this is also one of the most important question. Question number 11. Given two events independent minded independent दे दिया, PA given है. I will explain it. Do it at homework. The probability of B given है, so that is equal to 0.6. And then probability of, they are asking part 1 probability of A and B. A and B, if A and B are independent, then PA and B equal to क्या formula बनेगा बेटे? If A and B are independent, then PA and B equal to, and का मतलब क्या बताया बच्चे? And का मतलब क्या बताया? Intersection. So PA intersection B. Equal to क्या फॉर्मूला बनेगा बेटे? इंडिपेंडेंट का मतलब probability of A into probability. Yeah, probability of A into probability of B. You have answer just 0.18 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप बताओगे. Now next second part they are asking probability of A and not B. पहले इसको चेंज करो, क्या होगा? A and not B का मतलब क्या होता है? बोलो बेटे. P A and not B. Probability of A intersection B complement. Well done बेटे. So that is equal to formula क्या करोगे? A and B are independent. बेटे minded. A and B are independent. इंडिपेंडेंट का मतलब ही क्या होता है बेटे? इंटरसेक्शन मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, वो फॉर्मूला मत लगा देना. PA माइनस PA इंटरसेक्शन B वाला फॉर्मूला मत लगा देना. वो A and B are any two events, कोई भी दो इवेंट हो तब ये फॉर्मूला है. यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरी क्लियर दे रखा है. सो PA इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट आप बिगिनिंग में ही निकाल के रखना है, रखो नहीं है तो फॉर्मूला के साथ साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो. नाउ थर्ड पार्ट व्हाट दे आर आस्किंग, थर्ड पार्ट A और B. A और B का मतलब क्या होगा बेटे? A और B का बेटे थोड़ा जल्दी. Probability of A union B. Yes, A union B. Well done. Equal to formula क्या है? Can you say probability of A union B formula? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Well done बेटे. Minus probability of A intersection B. Okay. So you have to just substitute all the values so that you will get answer. Now fourth part, probability of neither A nor B. Neither A nor B. इसका can you translate बेटे? Neither A nor B. Probability of probability of A complement intersection B complement. Exactly. Equal to क्या फॉर्मूला लगाओगे? 1 minus probability of A union B. क्यों बेटे? यहाँ पे कहीं दिया यार B are any two events. बच्चे मैं बार बार बोल रही हूँ बेटे. Probability of A complement into probability. Exactly. बेटे जो पहले जो भी आंसर बोला है वो फॉर्मूला तब यूज करोगे. A and B are any two events. यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन में बिगिनिंग में बता दिया इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का मतलब जो भी इंटरसेक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन में जाता है बेटे. अब आगे से ध्यान रखना है, जो मैं बोल रही हूँ उसी बात को सुनो, दैट इज इनफ. बाकी आपको आराम से समझ आ जाएगा, लेकिन छोटे छोटे जो बातें हैं उसी को आपको माइंड में लेने पड़ेगा. सो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, समझो, आगे बढ़ो. सो अब समझ आ गया. सो ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीका से कंप्लीट कर लेना. राइट डाउन बेटे, राइट डाउन, फास्ट राइट डाउन, so that we can complete the exercise.
डन बेटे। हाँ बेटे, डन। Yes, ma'am. Yes. Now let us begin next one. बहुत ध्यान से नोट करना। Now see next question number 12. This is one of the most important question बेटे। Die is tossed thrice. एक डाई को 3 बार थ्रो करेंगे। What is sample space outcomes कितने होगा बेटे? NFS. If die is tossed thrown 3 times, what is the outcomes? 1,1,1. नहीं बेटे, that is not at all possible. You cannot derive. I am asking total number of elements in sample space. Yes, 6 into 6 into 6 equal to 216. That is not possible to derive sample space बेटे, उतना हम नहीं निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रही है? This is one of the repeated question, most important question. Find the probability of at least one odd number. बेटे क्वेश्चन में क्या बोला है? Probability of at least क्या होना चाहिए? One odd number होना चाहिए। Odd number, इसका मतलब क्या होता है? इधर देखना, जो अभी आपने बोला 1 1 1, ये तो तीनों ऑड नंबर हो गया ना। देन 1 2 1 1 2 1, इसमें 2 ऑड नंबर हो गया। सो ऐसे 3 ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर, ये एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक ऑड नंबर होना चाहिए। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 1 1 1 1 2 1, लाइक जैसे अभी 1 1 1 बोला है, ऐसे 1 3 3, ये दो तीनों हो गया। सो 1 2 4, ये एक ऑड नंबर हो गया ना, ये तो 1 3 4, ये 2 ऑड नंबर हो गया। ऐसे आप कितने निकाल सकते हो? एटलीस्ट 1 ऑड नंबर। आपका जो 3 नंबर मिल रहा है ना, उसमें कम से कम एक ऑड नंबर होना चाहिए। सो इसका आपको पता है, यू नो द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज PA प्लस उसका जो कॉम्प्लीमेंट है इक्वल टू 1 होता है। सो यहाँ से हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं 1 माइनस PA। सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस 1 बेटे? सो एटलीस्ट 1 ऑड नंबर, इसका ऑपोजिट क्या होगा बेटे? एटलीस्ट 1 ऑड नंबर, कम से कम। हाँ बोलो। नहीं, ऑड और ऑड नंबर तो आएगा ही ना बेटा। कम से कम एक ऑड नंबर हो, 2 ऑड नंबर भी तो हो सकता है, 3 ऑड नंबर। हाँ ऑर्डर नहीं, 1 बच्चे 1 ऑड नंबर, एटलीस्ट 1 का मतलब एक ऑड नंबर केस भी आएगा, 2 ऑड नंबर केस आएगा, 3 ऑड नंबर केस भी आएगा। सो टोटल कितने मिलेगा पता? 7 मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि 3 बार थ्रो कर रहे हैं ना। मान लो एक ऑड नंबर है एक प्लेस में, सो ऐसे 3 केसेस। अब वो 7 केस तो छोड़ दो, बहुत केसेस बनेगा, वो तो रहने दो। कम से कम आपका 28 होना चाहिए मार्क्स। सो क्या नहीं होना चाहिए? कम से कम 28 होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बिलो 28। सो बिलो 28 नहीं होना, 28 से नीचे नहीं होना चाहिए। सो व्हाट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करोगे? ऑड इवन नंबर नहीं है तो नन इज ऑड नंबर, नन इज ऑड। Otherwise probability of that is understood है, इसका parallel meaning 1 minus probability of all are even। all are क्या नंबर होना चाहिए? even नंबर।
जो तीनों का तीनों इवन नंबर हटा दो, सो जो बाकी बचेगा उसमें कोई ना कोई ऑड नंबर तो रहेगा। सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ऑड और इवन। हमारे पास 3 टॉस बेटे, बच्चे अच्छी तरह समझ लो, 3 टॉस है। पहला टॉस में तीनों का तीनों इवन नंबर आना चाहिए 3 आउट ऑफ 6, और दूसरा टॉस में भी सिर्फ इवन नंबर, क्योंकि उसी की प्रॉपर्टी 1 माइनस कर रही है तो बाकी बचेगा प्रॉपर्टी उसमें कोई ना कोई ऑड नंबर होगा ही होगा। सो इसमें से भी 3 आउट ऑफ 6 होगा। अभी भी इवेंट खत्म नहीं हुआ क्योंकि कंटिन्यूअसली 3 बार हम थ्रो कर रहे हैं, और थर्ड में भी हमारे पास सिर्फ इवन नंबर चाहिए 3 आउट ऑफ 6। सो 1/2 1/2 1/2 1 माइनस 1/8 दैट्स इक्वल टू 7/8। बेटे समझ आया बेटे? बोलो yes Yes, ma'am. yes। now see next one, another question number question number 13 I'm taking. This is one of the most important question. Two balls are drawn with replacement, minded with replacement। with replacement का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब निकालो उसको वापस रख सकते हैं, मतलब इधर उधर चेंज कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड विद रिप्लेसमेंट। सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या गिवन है बेटे? यहाँ पे गिवन है 10 ब्लैक बॉल्स है और क्या दे रखा है? 8 रेड बॉल्स दे रखा है। सो टोटल हमारे पास 18 है। पहला पार्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर रेड, दोनों को दोनों क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जो 2 बार हम कंटिन्यूअसली निकाल रहे हैं वो दोनों को दोनों रेड होना चाहिए। मान लो हमारे पास टोटल 18 है, उसमें फेवरेबल आउटकम्स कितने होगा? 8 आउट ऑफ 18 मैंने निकाला है, रेड बॉल आ गया, आइडेंटिफाई किया, वापस रख दिया। मेरा फेवर कौन सा? दोनों को दोनों, वो ब्लैक भी आ सकता है, रेड ब्लैक भी आ सकता है, लेकिन मेरा फेवरेबल आउटकम्स कौन सा है? सिर्फ रेड बॉल की बात करनी है। सो 8 आउट ऑफ 18। अभी इवेंट खत्म नहीं हुआ, इनटू अगेन एक बॉल निकालना है 8 आउट ऑफ 18, 3 निकालना हो इनटू 8 आउट ऑफ 18, सिंपलीफाई कर यू विल गेट आंसर। सेकंड पार्ट में क्या बोला है बेटे? प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए, एंड सेकंड क्या होना चाहिए? रेड। कंडीशन बता दिया बेटे, फर्स्ट ब्लैक है, सेकंड रेड है। फर्स्ट ब्लैक मतलब 10 आउट ऑफ 18, अभी इवेंट खत्म नहीं हुआ, इनटू जब तक 2 बार नहीं निकालोगे इवेंट रुकना नहीं है, into 8 out of 18 you will get answer। now probability of third one क्या बता रहे हैं? probability of one of them black, minded इसका डिफरेंस क्या है बताती हूँ। one of them is black and other is red, other is red। अब इसमें क्या होगा? अब देखना, and other is red में एक ब्लैक होना चाहिए, एक रेड होना चाहिए, ये नहीं बताया। पहला ब्लैक है, दूसरा रेड है। मान लो फर्स्ट ब्लैक आ गया आउट ऑफ 18 इनटू दूसरा रेड आ गया, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। प्लस पहला रेड, वन ऑफ देम कोई एक बताया, सो पहला रेड हो सकता है, दूसरा क्या भी हो सकता है? ब्लैक भी हो सकता है। बच्चे समझ आए बेटे? Yes, ma'am. यस। मैम एक बार से बता दीजिए। इधर देखना बेटे, ये वाला पार्ट पूरा, ये वाला समझ आ गया आपको? बोथ आर रेड समझ आए? हम स्टार्टिंग से बताते हैं सारे। अच्छा ठीक है। सो टोटल क्या दे रखा है? मैं दोनों आपको बता रही हूँ, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, दोनों का डिफरेंस बता रही हूँ बेटे, अच्छी तरह समझ लेना। बोथ आर रेड का मतलब दोनों का दोनों, मतलब जब तक 2 बार नहीं निकालोगे, जब तक इवेंट रुकेगा नहीं, इसका मतलब बीच में इनटू आना चाहिए, नंबर 1। प्लस तब आता है बेटे जब दूसरा इवेंट का बात करिए, इधर देख प्लस यहाँ पे लगाया, दूसरा इवेंट की बात किया, तब प्लस आता है। जब एट ए टाइम पे 2 निकालना है, 3 निकालना है, आपका बीच में इनटू आएगा, मल्टीप्लिकेशन इवेंट रुकेगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे दोनों को विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? बॉल हम निकालते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, वापस रखते हैं, इसका मतलब ईच ड्रॉ में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स उतना ही रहेगा उसी बैग के अंदर, वो भी कंडीशन ध्यान में रखो। अब बोथ आर रेड मतलब 2 निकालना है, विद रिप्लेसमेंट है, दोनों को दोनों रेड होना चाहिए। हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स 8 है, टोटल आउटकम्स 18 है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवर अपॉन टोटल। सो फेवर अपॉन टोटल कर दिया, और इनटू वो तो कितनी बार ब्लैक भी आ सकता है, कुछ भी, लेकिन आपका किसका प्रोबेबिलिटी निकालना, वो आपका फेवर बेटे। यहाँ पे दोनों को दोनों रेड निकालने की बात कर रहे हैं, सो वो आपका फेवर होगा। 8 आउट ऑफ 18, अभी इवेंट नहीं रुका, इनटू अगेन क्या किया हमने? 8 आउट ऑफ 18। अब आ जाओ, यहाँ पे बोला है पहला जो है वो ब्लैक निकालो, इनकेस रेड आ गया वापस रखो, हमारा फेवरेबल नहीं है ही नहीं।
सो दूसरा क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। पहला मैंने निकाला है 10 पॉसिबिलिटीज था, उसमें कोई भी एक आ सकता है। 1 आउट ऑफ 18 वी कैन नॉट राइट, 1 आउट ऑफ 10 वी कैन नॉट राइट। हमने अलग अलग नहीं रखा बेटे बैग के अंदर, बैग के अंदर 18 का 18 मिक्स्ड है, समझ आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स होता है। हम तो ब्लैक की बात कर रहे हैं। सो बैग में 10 बॉल्स है, 10 में से कोई भी एक आ सकता है आपके पास। सो वही 10 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 18 इनटू सेकंड क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। वी हैव 8 आउटकम्स है अंदर फेवरेबल आउटकम्स, उसमें कोई भी आ सकता है। इन केस ब्लैक आ रहा है दोबारा तो वापस रखो, वो आपका फेवरेबल नहीं है। सो 8 आउट ऑफ 18, बात समझना। यहाँ पे क्या बताया, वन ऑफ द, कोई भी एक, मतलब मैं यहाँ बैठ के दूसरा यहाँ बैठा हुआ, हम दोनों इंटरचेंज भी कर सकते हैं। सो वन ऑफ द मतलब कोई एक ब्लैक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। सो पहला में भी रेड ब्लैक आ सकता है, दूसरा रेड हो सकता है, नहीं है तो दूसरा पॉसिबिलिटी भी है, पहला रेड आ जाए दूसरा ब्लैक आ जाए। सो विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट होता है बेटे। अरेंजमेंट में रिड्यूस नहीं हो सकता, आप इंटरचेंज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, बट बाहर नहीं रख सकते हो, दैट इज डिफरेंस। सपोज यही क्वेश्चन आपका विदाउट रिप्लेसमेंट में आ गया। सो इसकी जहां पे क्या करोगे पता है, 8c2 अपॉन 18c2 करोगे, क्योंकि एक निकालोगे, इसका मतलब क्या है 8 इंटू 7 अपॉन क्या होगा 18 इंटू 70, इधर देख 8 आउट ऑफ 18 और 7 आउट ऑफ, एक रिड्यूस हो गया। सो क्योंकि विदाउट का मतलब क्या होता है, निकालते हैं बाहर रख देते हैं। इसमें फर्स्ट ब्लैक कंडीशन नहीं आ सकता है, इसमें सिर्फ ये वाला केस आ सकता है विदाउट रिप्लेसमेंट में, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। सो मतलब 18 में से 2 चाहिए, लेकिन एक ब्लैक होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। ये होता है कॉम्बिनेशन। देखो 1 + 1 2 निकाल दिया आउट ऑफ 18। ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, ये होता है विद रिप्लेसमेंट। बेटे समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। बेटे क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 14 मैं चेंज करती हूँ, 14 क्वेश्चन मैं चेंज करती हूँ। ये 14 क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। ये जो मैं कर रही हूँ ये बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन ले रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली। अंडरस्टूड है बेटा, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो इंटरव्यू देना, वो शूटिंग करना, वो सच झूठ बोलना, वो सब कुछ इंडिपेंडेंट होता है। तो ये गिवन है सॉल्व करने की 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/3 एंड मैं ले रही हूँ 3 केसेस ले रही हूँ। आप 2 केस वाला बुक में जो दे रखा है वो होमवर्क में कर लेना। मान लो आप लोग 3 स्टूडेंट्स मेरे सामने जो भी है उनका एग्जाम्पल अपने आप ले लो, वो तीनों स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कर रहे हैं मतलब ना करने की भी पॉसिबिलिटी है, करने की भी पॉसिबिलिटी है। ये तो सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी है, सो ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल दो बेटे। 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट है 1 - 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट है 1 - 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। ओके, अब सबसे पहला पार्ट क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। एक बात को याद रखना बेटे, आप लोग 3 लोग सामने बैठे हुए, तीनों के पास क्वेश्चन दे दिया, मेरी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। इन 3 में से कोई एक भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो सॉल्व तो हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सो इसका पैरेलल मीनिंग मतलब एक करें, नहीं है तो 2 करें, नहीं है तो तीनों का तीनों सॉल्व करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो इसका पैरेलल मीनिंग क्या हो सकता है बेटे, इसका पैरेलल मीनिंग क्या भी पूछ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 सॉल्व, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 सॉल्व, इसका पैरेलल मीनिंग पूछ रही हूं मैं। अब एटलीस्ट 1 सॉल्व में 7 केसेस बनेगा। मान लो पहले एक गर्ल ने कर लिया, बाकी दोनों ने, मतलब ए ने कर लिया, बी सी दोनों ने नहीं सॉल्व किया, और ए और सी ने सॉल्व नहीं किया, बी ने कर लिया, और बी और सी ने सी ने सॉल्व कर लिया, ए और बी ने नहीं किया। 3 केसेस बनेगा, और 2-2 के लिए 3 केसेस बनेगा। ये बी ने कर लिया सॉल्व, बी ने सॉल्व नहीं किया, बी सी ने कर लिया, ये ने नहीं किया, ए और सी ने सॉल्व कर लिया, बी ने नहीं किया। सो 3 केसेस आ गए, सो 6 केसेस हो गया। एंड देन तीनों को तीनों सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी है, तभी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो टोटल 7 केसेस बनेगा। इससे बेटर इसका ऑपोजिट क्या बताया बेटे, 1 माइनस क्या होगा, नन इज सॉल्व। एम आई राइट, है ना बच्चे, समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ बेटे? Yes, ma'am. यस।
So either problem will be solved, at least one solved, उसका parallel meaning 1 minus the probability of none is solved, that is equal, otherwise 7 cases बना के बहुत घूमेगा. 1 minus none is solved, 1 by 2 into 2 by 3 into 3 by 4. So that is equal to, simplify करो, cancel 1 minus 1 by 4, that is equal to 3 by 4. नेक्स्ट सेकंड पार्ट में उसमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एटमोस्ट आ सकता है, एटलीस्ट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है बेटे. Probability of one of them solved, one of them is solved. One of them solved मतलब कोई एक सॉल्व करना चाहिए, उसमें एक मतलब कंडीशन है बेटे, एटलीस्ट नहीं है ना एटमोस्ट है. वन ऑफ देम सॉल्व, कोई एक सॉल्व करना चाहिए. मान लो ए ने सॉल्व किया, बी ने सॉल्व नहीं किया एंड सी ने सॉल्व नहीं किया, ये की केस नहीं है. तो ए ने सॉल्व नहीं किया, बी ने सॉल्व, हम तो पूरा पॉसिबिलिटीज निकालते हैं बेटे, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. और ए ने सॉल्व नहीं किया और बी ने सॉल्व नहीं किया और सी ने सॉल्व कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. सो ये केसेस है वन ऑफ देम सॉल्व, कोई एक सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है आपके पास, दैट इज इक्वल टू ए क्या है 1 by 2 into 2 by 3 into 3 by 4 and then plus the probability of A complement 1 by 2 into 1 by 3 into probability of C complement 3 by 4 and then plus the probability of A complement 1 by 2 into 2 by 3 into 1 by 4. Now that is equal to, अभी कभी भी डिनोमिनेटर इसी तरह ज़्यादा कैलकुलेशन आता है, डिनोमिनेटर को कैंसिल मत करो, 6 24 कॉमन ले लो. सो ये ऊपर आ जाएगा, 6 इजी रहेगा बेटे कैलकुलेशन, अदरवाइज आपको घूमने पड़ेगा. सो 8 11 by 24. इन केस एटमोस्ट 2 पूछ रहे हैं, कम से कम 2, सॉरी मैक्सिमम 2 हो तो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. 1 माइनस ऑल आर सॉल्व्ड हटा दो. सो क्वेश्चन देखे जो कौन सा इजी रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसके कॉम्प्लीमेंट लेकर भी जा सकते हैं. बच्चे समझ आ रहे बेटे? Yes, ma'am. Yes bete, no down, please no down. If you have any problem you can say. थोड़ा जल्दी नो डाउन करो so that we can complete exercise. बेटे थोड़ा फास्ट लिखो, टाइम रनिंग है बच्चे. बेटे have you written?
Yes, ma'am. Yes. Now see beta, let me begin this question number. Question number 15 I'm taking. बेटे थर्ड पार्ट में करूंगी, आप बस मुझे आंसर देना. फर्स्ट टू पार्ट you can do it at homework. ये इवेंट कार्ड ड्रॉन एज किंग और क्वीन. कितने कार्ड होते हैं बेटे? किंग कितने होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ये किंग कितने होते हैं बेटे प्लेइंग कार्ड्स में? 4 आउट ऑफ 52. आर का मतलब मैंने बताया एडिशन प्लस क्वीन. क्वीन कितने होता है? 4 आउट ऑफ 52 दैट इज इक्वल टू 8 आउट ऑफ 52. और एफ इवेंट दे रखा है आपके पास, क्या दे रखा है? क्वीन और जैक. जैक कितने होता है बेटे? जोर से बोलो बच्चे. Ma'am, 4. 4 out of 52 plus 4 out of 52, so that is equal to 8 out of 52. मुझे ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है, कॉमन कार्ड कितने हैं दोनों में? ई और एफ में कॉमन कितने हैं? यस एग्जैक्टली 4 out of 52, क्योंकि क्वीन जो है वो कॉमन हो जाता है. They are asking E and F are independent. If E and F are independent, then you know if E and F are independent, then you know the formula. Probability of E intersection F equal to क्या होता है बेटे? Probability of E intersection F equal to Probability of E into probability of F. Probability of E intersection F we have 4 out of 52. Now E probability of E 8 out of 52 into 8 out of 52, so not equal. This implies E and F are not independent. E and F are not independent. इसी तरह बाकी क्वेश्चन, बाकी जो पार्ट है वो आप करोगे. Now next क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 16. बेटे क्वेश्चन नंबर 16 प्लीज पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो बेटे. बेटे पढ़ो. of the students read newspaper, 40% English newspaper and 20% read Hindi and English. बेटे रुको बच्चे थोड़ा आराम से पढ़ो बेटे. In a hotel, 60% of the students read Hindi newspaper. होटल है हॉस्टल है? 40% हॉस्टल है होटल है? वो स्टूडेंट बता रहे हो होटल कहाँ से? होटल हॉस्टल दोनों एक ही बन गया. ठीक है बोलो. In a hostel, 60% of the students read Hindi newspaper. Okay. 40%. हाँ. 40% read English newspaper. अच्छा जी. And 20% read both Hindi and English newspaper. देखो probability of H intersection and का मतलब पता है, that is equal to 20% you are saying. Well done बेटे. आगे पढ़ो क्वेश्चन. A student is selected at random. Okay. A part, find the probability that she reads neither Hindi nor English news. अच्छा रुको. Neither Hindi nor English. इसका पैरेलल मीनिंग क्या है बेटे? हिंदी का लेटर H ले लिया, इंग्लिश का E ले लिया. Neither Hindi nor English. इसका मतलब पैरेलल मीनिंग क्या होगा बेटे? हाँ. Better, very good, शाबाश. Equal to formula 1 minus probability of H union E. Well done बेटे, शाबाश. So now that is equal to, you know the formula, you know how to do. कर लोगे बेटे? कर लोगे? बोलो. Yes. Now second part पढ़ो बेटे. So formula यहाँ पे H union E का formula लगाओगे बेटे. That's understood है. मैंने नहीं कर रही हूँ. Probability of E and minus probability of H intersection E, सब कुछ given है, just a substitute you will get answer. Second part बोलो बेटे. If she reads Hindi newspaper, find the probability that she reads English newspaper. कुछ समझ में आई है? ये कौन सा probability है? If she read हिंदी न्यूज़पेपर, मतलब हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं. हाँ बेटे बोलो. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. हाँ क्या निकालना है? Well done, शाबाश. E by H. So conditional. If she read हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं,
E by H. So इंग्लिश पढ़ने की प्रॉपर्टी निकालो. So that is equal to what is the formula बेटे? E by H equal to probability of E intersection H upon probability of. well done, very good शाबाश. ठीक है, E intersection दे रखा है तो देन निकालो. थर्ड पार्ट पढ़ो बेटे, थोड़ा फास्ट पढ़ो, टाइम रनिंग है. If she reads English newspaper, हाँ. find the probability that she reads Hindi newspaper. So ये पूछ रही है, तुम निकाल दोगे, फॉर्मूला पता है ना आपको. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी पढ़ो, खत्म करते The हैं. probability of obtaining an even prime number on each die हाँ. and a pair of dice. ठीक है, पेयर ऑफ डाइस थ्रो करोगे 36 सैंपल पॉइंट आएगा. दोनों में इवन प्राइम नंबर आना चाहिए. कितने होगा बेटा इवन प्राइम नंबर दोनों में, ईच डाई में. सो कौन सा होगा इवेंट? हाँ बेटे 2 2. हाँ 1/36. एक ही तो इवेंट आएगा 2 2, दैट इज 1/36. क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटे. सो 1/36 इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 18. 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. बेटे इंडिपेंडेंट का मतलब 18:1 बता रही हूँ. इंडिपेंडेंट का मतलब आप देखो, आपको बताया इंडिपेंडेंट का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, इंटू की जहां पे मल्टीप्लीकेशन भी दे रखा होगा. सो कौन सा आंसर सही रहेगा? कैन यू से? बी पार्ट बेटे, बी पार्ट में देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इंटू दे रखा है. इंटू जहां पे इंटरसेक्शन भी तो आता है, मैं बता रही हूँ. सो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट. फॉर्मूला लगाओगे दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. आर यू क्लियर बच्चे? सभी को समझ आए ये? हाँ, कल थोड़ा लेट ज्वाइनिंग मत करो, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन दे दिया ना खत्म हो जाएगा. इंट्रोडक्शन उसी तरह समझाऊंगी, आपको पूरा अच्छी तरह समझ आ जाए. सो इसलिए प्लीज टाइम से ज्वाइन करें. सो कल आपका इंट्रोड्यूस कराऊंगी बेस सेरम. ओके, सो प्लीज नोट डाउन एवरीवन. Have you written better? Thank you.